Hey guys, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 1st of May 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook, Telegram. Let us move on to the main content. So today is 1st of May. As we know, 1 मई को celebrate किया जाता है the World Labor Day also. It is also called the May Day. And along with that, it is also the establishment of गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो पहले जो erstwhile बॉम्बे स्टेट था, which was comprising of all the regions, some of the regions of Madhya Pradesh, Goa, Maharashtra, Gujarat, it got separated in 1960 and formed two separate states. One is Gujarat, another is Maharashtra, and the day was 1st of May. गुजरात में महागुजरात आंदोलन चला गया था और गुजरात के पहले चीफ मिनिस्टर जीवराज मेहता, एंड दैट इज़ वाई दिस डे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुजरात. एंड इन 2012 जब इसके बाद 50 साल हुए थे, देन इट वाज 2010 सॉरी व्हेन इट इज़ हैविंग 50 ईयर्स. सो स्वर्णिम गुजरात आंदोलन चलाया गया था मोदी जी द्वारा, एंड सो दिस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात एज वेल एज महाराष्ट्र. Now, what is important for our point of view or exam point of perspective is, so in this day, Gujarat government has launched one very innovative program, that is Marugram Corona Mukt Gaam. That is the village COVID management facility. That is, every village is given a responsibility to take care of their village area and to make that their village is free from corona. So Gujarat is one of the first states to launch such program based on the village stratification. ग्रामीण स्ट्रैटिफिकेशन के कारण को यूज़ करके गुजरात पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह के ग्रामीण लेवल पर कैंपेन शुरू किया गया है, जो 1 मई से लेकर 15 मई तक है. एंड दैट इज़ टू अवेयर द पीपल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वैक्सीनेशन एक्सेट्रा, हाइजीनिक. सो Marugram Corona Mukt Gram, this village empowerment policy has been undertaken by the government of Gujarat. So it can be indirectly asked that which state has organized, or which state was organized the Gram rural level protection scheme in the COVID-19 fight. So it was Gujarat. Another important from editorials, आज का पूरा पेपर गुजरात डे के ऐड से भरा हुआ है, स्पेशली द अहमदाबाद एडिशन. नाउ देयर आर 2 मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. अलग अलग ऐड से कुछ एग्जाम के लिए जो ज़रूरी लगा वो हमने ले लिया है. द फर्स्ट थिंग इज़ RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जामनगर. इसने भी गुजरात डे पे एक ऐड दिया था दैट गुजरात इतना ग्लोरियस है, वी आर कंट्रीब्यूटिंग दिस एंड दैट. बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है उस पॉइंट में से, दैट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब. So it is important for GK, general knowledge point of view, that which is the world largest refining hub. So this world's largest refining hub is at RIL Jamnagar. Okay, so there are 2 important news. First is the rural development scheme or rural corona fighting scheme by the Gujarat government. Second is the world's largest refining hub by RIL, that is Reliance Industries Limited, Jamnagar. Second important scheme is based on the Rajasthan government. On same Labor Day, 1st of May, the government of Rajasthan has launched a scheme called Chiranjeevi. This is basically a similar scheme to Ayushman Bharat in the state level. What are the primarities of the scheme? इस scheme की खासियत क्या है, specifications क्या हैं? So the scheme is every family will have a benefit of 5 lakh rupees per year. ओके, एंड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें से 3500 करोड़ 3500 करोड़ विल बी गिवन एज एन प्रीमियम बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. सो स्टेट गवर्नमेंट 3500 करोड़ रुपए का प्रीमियम खुद से भरेगी और हर फैमिली को 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है. उसमें कुछ और स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं वो देखते हैं हम. फर्स्ट इज़ फ्री मेडिकल एड अप टू ₹5 लाख in 765 government and more than 330 private hospitals across Rajasthan. So it is basically a Rajasthan based scheme. यानी कोई राजस्थान का व्यक्ति का अगर राजस्थान से कहीं बाहर इलाज करा रहा है तो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड. अ पर्सन हु इज़
a resident of Rajasthan or domicile of Rajasthan is being operated in Rajasthan will be given 5 lakh rupees free medical care in 765 government hospitals as well as 330 private hospitals across Rajasthan, not outside Rajasthan. Second is beneficiary can take advantage of free treatment facility only when admitted in hospital. So ये जो कंसल्टिंग चीज़ें होती हैं, नॉर्मल फिजिशियन व्हेन यू गो टू अ क्लिनिक एंड देन कंसल्ट एंड व्हेन यू डो नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन, जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं हो उस तरह की बीमारियों में आपकी इसमें बेनिफिट नहीं मिलेंगी. जो नॉर्मल फिजिशियन से आप नॉर्मल चीज़ें दिखाने जाते हैं दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल. ओनली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस विल बी अवेलेबल एंड दैट टू उस बीमार होने के 5 दिन से पहले के लेकर डिस्चार्ज होने के 15 दिनों तक, दैट इज़ 5 days बिफोर बीइंग एडमिटेड अप टू 15 days आफ्टर डिस्चार्ज. 5 to 15 एंड एक्स्ट्रा 20 days plus total hospitalization days expense will be bared by the state government up to 5 lakh rupees. Just same in the case of Ayushman Bharat. Second, schemes covers 1576 यानी कि 1500 से ज़्यादा तरह की मेडिकल प्रोसीजर्स ट्रीटमेंट, जिसमें से हार्ट, कैंसर, डायलिसिस, कोविड-19 एक्सेट्रा. So it is very important. It can be asked what type of disease. So it is both comorbid as well as infectious. तो इन्फेक्शियस डिजीज़ भी है जो इन्फेक्शन से वायरस से फैलती है, एंड जो डीजेनरेटेड डिजीज़ हैं दैट इज़ द हार्ट डिजीज़, कैंसर डिजीज़, डायलिसिस दैट इज़ शुगर प्रॉब्लम. व्हेन शुगर इंक्रीजेज द किडनी डायलिसिस इज देयर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स एक्सेट्रा. सो बोथ टाइप ऑफ दोनों इन्फेक्शियस एज वेल एज डीजेनरेटिव डिजीज़ दोनों की कंपैरिजन, दोनों के लिए इलाज यहाँ पर संगम करा सकते हैं अप टू 5 लाख रुपीज़ फॉर फैमिली. द बेनिफिशियरी ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA एंड सोशियो इकोनॉमिक सेंसस 2011 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, यानी कि उनको ऑलरेडी जिनको NSFA मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिनको बेनिफिट्स मिल रहा है, और जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस यानी कि सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको बेनिफिट्स पहले की तरह ही मिलते रहेंगे. सो जो नए लोग हैं उनको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस स्कीम कवर्स ऑल बट दोज पीपल इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के जो लाभार्थी हैं, अलॉन्ग विद दैट द सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के जो लोग हैं उनको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा राहत है, और बाकी लोगों को फिर रजिस्टर कराने की ज़रूरत है. बट इट इज़ फॉर ऑल ऑफ द सिटीज़न. ये पूरे राजस्थान के सिटीज़न के लिए. 2 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है. इट इज़ फॉर एवरी सिटीज़न, ठीक है, एवरी फैमिली. इट इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर SEBC और लोअर क्लासेस, नो, इट इज़ फॉर एवरीबडी. बस इसमें रिलैक्सेशन ये है कि जो NFSA हैं वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड जाएंगे, उनको रजिस्टर कराने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है. सो दिस वाज स्कीम ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट. इज़ वेरी रेवोल्यूशनरी स्कीम है, एक क्रांतिकारी स्कीम है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लाई गई इस तरह की स्कीम पहली स्कीम है, और दैट इज़ वाई वी नीड टू कवर इट. और हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स आप इसका एग्जांपल देके अपने स्टेट्स में, अपने स्टेट पीसीएस में जब मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो एक पॉइंट रख सकते हैं. अगर राजस्थान कर सकता है तो वाई नॉट गुजरात, वाई नॉट तमिलनाडु, वाई नॉट अदर स्टेट्स. सो दिस इज़ अ बिगिनिंग. ऑल्सो हमारी जो टोटल GDP है उसका हेल्थ में हम बहुत कम 5% से भी कम खर्च कर रहे हैं, एंड दैट वी नीड टू एक्सपेंड मोर देन 5% ऑफ आवर GDP इन द हेल्थ सेक्टर इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड देन वी विल बी एबल टू मेक आवर इंडियन हेल्थ सिस्टम बेटर. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द डिमाइस, सैडफुल डिमाइस ऑफ सोली सोराबजी. सो कोविड-19 की वजह से जाने माने संविधान विज्ञ, ठीक है, बहुत संविधान विशेषज्ञ, ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अ लीगल लेमनरी, अच्छे लॉयर, ही डाइड रिसेंटली. सो सोली सोराबजी, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो इनका नाम ज़रूर सुना होगा. ही वॉज ऑल्सो 2 times अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. व्हाट इज़ अटॉर्नी जनरल? तो सरकार का जो वकील होता है, ठीक है, जो व्यक्ति सरकार को अलग अलग केसेस में रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ हु इज़ द अटॉर्नी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज़ नोन एज अटॉर्नी जनरल. ही इज़ अपॉइंटेड अंडर द वारंट एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है और जब तक चाहे तब तक कर सकते हैं, जब चाहे इनको निकाल भी सकते हैं. सो दिस नॉट अ परमानेंट फिक्स पोजीशन, एंड ही हैज़ द पावर कि किसी भी कोर्ट में वो जाकर किसी भी हियरिंग में जाके बैठ सकता है, ठीक है. पार्लियामेंट की प्रेसिडिंग्स में भी जाके बैठ सकते हैं, बट वोट नहीं दे सकते. सो दीज आर द स्पेशल प्रोविजंस. काइंडली डू विजिट द लक्ष्मीकांत चैप्टर ऑन दिस अटॉर्नी जनरल और रिवाइज कर लेंगे कॉन्सेप्ट. सोली सोराबजी जो थे वॉज अ स्टूडेंट ऑफ नानी पालखीवाला. नानी पालखीवाला केस आपने सुना होगा. फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, राइट टू आर्ट, आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी. तो इन तरह के स्टूडेंट इनके स्टूडेंट थे, और ये भी
राइट टू लिबर्टी हो, प्रो बोनो केस, ठीक है, प्रो बोनो केस के लिए ही वॉज वेरी मच फेमस एंड ही यूज टू फाइट फॉर राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, इज़ अ वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पे ही यूज टू गिव हिज ओपिनियंस, जस्ट लाइक मिस्टर सुभाष कश्यप, नाना पानकीवाला। और उनके स्टूडेंट्स हैं अभी जो तुषार मेहता हो गए, हरीश साल्वे, और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं यू ललित, दीज आर इट्स स्टूडेंट्स। सो ही वॉज बेसिकली फ्रॉम अ पारसी फैमिली हु गॉट ट्रेन्ड इन द बॉम्बे, combined Bombay, and then became settled in the Maharashtra, Mumbai. So persons in news के लिए is very important news. He was a very famous legal luminary. His name was Soli Sohrabji. He was a Parsi lawyer and very famous, 2 times Attorney General of India and constitutional expert, freedom of speech, right to equality against the governments, सरकार के खिलाफ बहुत सारे cases which is based on the rights of the people, the equality of the people. These things were being dealt by Mr. Nana Palkhiwala, Mr. Soli Sohrabji, and his teacher also, Nani Palkhiwala, especially during the emergency case. Next news is very important, another from the Telangana government. The Telangana government has got approval from the Ministry of Civil Aviation, Nagrik Udayan Mantralay. ठीक है, so Ministry of Civil Aviation has given the authority to the Telangana government to apply for the drone related medical service. Now this is a revolutionary step. भारत में ये पहला ऐसा स्टेट है जिसको ये परमिशन मिली है to use drone for delivering the medical services and equipments at different parts of area, because we know in the Telangana remote areas में, गांव दूर दराज के एरिया में, geographically challenged area में, when it is difficult to go mobility, when you want to save time, now drones are being used to transfer medical facilities, medical products, etc. in the remote areas. And there are 2 things. First is VLOS, visual line of operation of sight. 2 तरह के ड्रोन होते हैं, एक होते हैं जो विजुअल VLOS में उड़ते हैं, that is that we can see in the visual range, and one is beyond visual range, ठीक है, that is up to the higher distance. Now the only difference is जो VLOS होते हैं विजुअल रेंज वाले, दे कैन कवर शॉर्टर डिस्टेंस बिकॉज दे फ्लाई इन कंपैरिजन टू लोअर, ग्राउंड से पास कम दूरी पर होते हैं और वो कम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. बट दोज बियॉन्ड विजुअल रेंज दे फ्लाई एट द हायर डिस्टेंस एंड सिमिलरली दे आर यूज फॉर रिमोट एरियाज, बहुत दूर दूर तक जाने के लिए और बहुत जल्दी, ज़्यादा स्पीड, मोर स्पीड एंड मोर डिस्टेंस को यूज़ करते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज. एंड विजुअल रेंज इज़ कंपैरेटिवली लेसर स्पीड एंड लेस डिस्टेंस. सो अभी फ़िलहाल उनको VLOS विजुअल रेंज ऑपरेशन ऑफ साइट नहीं मिला है, लेकिन दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू VLOS बियॉन्ड विजुअल रेंज. So Telangana government is the first government, and based on this other government should also procure this, use this facility to provide the medical facility in the remotest area, especially in the Naxal hit areas and all, where the transportability, where road infrastructure is not so good, but still people needs medical help and care. 2 other news from economies. First is the core 8 sectors of the economy. So the 8 core sectors you might have studied in the economy. 8 भारत की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में 8 कोर सेक्टर होते हैं, एंड दीज 8 कोर सेक्टर्स आर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि 8 में से 5 आर रिलेटेड टू एनर्जी एंड फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 5 के 5 जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है. सो ऑल दोज इन द रेड आर रिलेटेड टू एनर्जी, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड रेस्ट 3 आर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर, स्टील, cement and fertilizer. Fertilizer is used in agriculture, steel and cement in the infrastructural development, road infrastructure, buildings, constructions, and electricity is in the power sector. So ये 8 सेक्टर जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी के कोर सेक्टर होते हैं. इंडियन इकोनॉमी के दे आर कोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. डायरेक्टली क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर सेक्टर्स. In the MCQ you should be very well known about this, what are the core sectors of the economy. और इन्हीं में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है वो कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो IIP होती है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि महंगाई को नापने के लिए, इन्फ्लेशन को नापने के लिए वी हैव अ CPI, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, एंड WPI, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन. उसी तरह से इन इंडस्ट्रीज़ में, इन कोर सेक्टर्स में
कितना ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना ग्रोथ हो रहा है, उसको नापने के लिए हमारे पास होता है इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा इट हैज़ बीन फाउंड दैट 32 महीने के हाईएस्ट रेट पर 6.8% ग्रोथ हुआ है अभी तक इन सारे कोर सेक्टर्स में। तो उसका 2 रीज़न बताया गया है। बताया लो बेस इफेक्ट। नाउ व्हाट इज़ अ लो बेस इफेक्ट? लो बेस इफेक्ट मीन्स आपने परसेंटेज निकाला होगा, एंड व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द परसेंटेज डेटा what happens is if the base is less the percentage is more, and that is why what happened कि पिछले साल क्योंकि वो 7% से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। इन सेम मार्च पीरियड देयर वाज अ लॉकडाउन गोइंग ऑन, एंड ये सारे के सारे 8 के 8 सेक्टर में 7% की गिरावट आई थी। दे कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7%। और सिमिलरली जो बेस हो गया वो कम हो गया, और उसके कंपैरिजन में आज अगर थोड़ा भी इंक्रीमेंट हुआ है तो दैट इज़ कंपैरेटिवली 6.8%। तो अगर उसको मार्च 2019 के बीच में करेंगे सपोज, सो इट वाज 1920, 2021 एंड देन 18-19, तो इसके कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट स्टेबल ग्रोथ है। बट सिंस बिटवीन द लॉकडाउन वाज देयर एंड द ग्रोथ डिक्लाइंड बाय 7%, सो रिसेंट ईयर में जो भी ग्रोथ हुआ है इज़ कंपैरेटिवली मोर, एंड दैट इज़ वाई it is called the low base effect. Okay, and since the base is less the percentage will be more, and that is why it is 6.8% which is higher in the 32 months। आने वाले पिछले 32 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ दैट द 8 core sectors have reached the 32 months higher, which is a 6.8% in the growth. What is important for exam point of view is what are the 8 core sectors and are they have increased or decreased? So they decreased, their production decreased in the financial year 2019-20, but has it increased in 2021 and 22. Why? Because of the low base effect, क्योंकि उससे पहले वाले साल में बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब उसके कंपैरिजन में इस साल का डेटा निकालेंगे तो दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द नेक्स्ट ईयर, बिकॉज नेक्स्ट ईयर तो देयर वाज अ डिक्रीज, एंड सो इफ़ देयर वाज अ माइनस इंक्रीमेंट इन द नेक्स्ट ईयर, पिछले वाले साल में अगर नेगेटिव इंक्रीमेंट है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले साल में अगर थोड़ा भी इंक्रीमेंट हुआ तो वो इट विल बी काउंटेड एज अ पॉजिटिव इंक्रीमेंट, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ लो बेस इफेक्ट। व्हाट आर द 8 सेक्टर्स? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली ये जो है लास्ट ईयर मार्च में 8.6% के आसपास गिर गया था, और उससे भी पहले 7%, यानी टोटल देखेंगे तो पूरा 7% के आसपास गिरा था, और इंडिविजुअली सेक्टर्स वाइज देखें तो इट बिकेम 8.6% डिक्रीमेंट इन द सेम सेक्टर। बेसिकली इन 8 सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हुआ है? तो नेचुरल गैस, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स फ्यूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फ्यूल और स्टील में देयर हैज़ बीन इंक्रीमेंट विच इज़ कॉजिंग नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज़ बीन राइज्ड, एंड सिंस द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहाँ की अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है तो देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। सो इट इज़ अ बेटर गुड न्यूज़ comparison to the last year in the economy, that there has been increase in the employment due to this increase in the natural gas, steel and cement, जिसने पहले वाले साल में 7% का डिक्लाइन दिखा था, लेकिन आज के वर्ष में इस फाइनेंशियल मार्च के ईयर में दिस हैज सीन अ 6.8% ग्रोथ। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द रिवर्स माइग्रेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड माइग्रेशन इज मूवमेंट ऑफ पीपल। नॉर्मली व्हाट हैपन्स, अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन इन द, एक बड़ी जनसंख्या जो भारत के पूर्वी और उत्तरी हिस्से से भारत के दक्षिणी, सदर्न और वेस्टर्न हिस्सों में आती, क्योंकि द सदर्न एंड द वेस्टर्न रीजन्स आर मोर इंडस्ट्रियलाइज, एंड टू वर्क इन दिस रीजन द पीपल ऑफ ईस्ट एंड द नॉर्दर्न इंडियाज वेयर इंडस्ट्रीज आर लेस ड्यू टू देयर जोग्राफिकल कंसर्न। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की न होने के कारण जो वेस्ट में और साउथ में, क्योंकि अच्छे पोर्ट्स हैं, अरेबियन सी है, द वेयर यूरोप का रास्ता जाता है, so they are more industrialized, and that is why the people migrate from these regions to the western and southern parts of the India. That is called the migration. काम की तलाश में लोग, प्रवासी लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। बट रिवर्स माइग्रेशन इज़, उनको अगर काम नहीं मिल रहा है देन दे आर गोइंग बैक। और ये रिवर्स माइग्रेशन कैसे पता लगाते हैं? तो उसका कोई ऑफिशियल डेटा अभी तक है नहीं कि माइग्रेशन पता लगाना है कि क्या है, कितने लोग आए नहीं है, बिकॉज सरकार उस पर कोई गिनती नहीं है, कोई इसमें काउंटिंग नहीं होती। एनी वन कैन गो एंड एनी वन कैन कम, बट इट इज़ डिड्यूस्ड, यानी इसको एनालाइज किया जाता है।
एंड हाउ इट इज़ एनालाइज, तो इसका एनालिसिस ऐसे किया गया कि रिसेंटली मनरेगा, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यानी कि जो मनरेगा है गाँव में जो मनरेगा के तहत काम मिलता है उसमें 92% का वृद्धि हुई। दैट इज़ उसके काम के डिमांड में 92% डिमांड ज़्यादा बढ़ा है, यानी मनरेगा में लोग ज़्यादा काम करने वाले आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मनरेगा में काम का डिमांड ज़्यादा बढ़ा, दैट मीन्स लेबर ज़्यादा बढ़े, और लेबर ज़्यादा बढ़े दैट मीन्स वो जो लोग ईस्ट से वेस्ट काम करने के लिए गए थे दे आर कमिंग बैक, एंड दैट्स इज़ कॉल्ड रिवर्स माइग्रेशन। और ये देखा गया कि अप्रैल में के आसपास मनरेगा में जो जॉब डिमांड होती थी, ठीक है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी गांव में जो काम करवाते हैं उनमें जो जॉब डिमांड होती थी वो 2 गुना बढ़ गई। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, इन सब स्टेट से लोग वापस से यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन जगहों पर मध्य प्रदेश हैव रिटर्न्ड, एंड दिस इज़ अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज द इकोनॉमी इज़ डिक्लाइनिंग in that particular area. Now apart from that serious news or stupendous news, there is a good news that recently 1.15 or 1.2 lakh crore GST is going to come. So GST का जो मंथली रेवेन्यू है वो 1.20 लाख के आसपास आने की संभावना है, वो जो एक अच्छी खबर है बिकॉज एंड दिस शोज दैट द मीडियम MSME वर्क and the small sectors are working and the economy is growing at a pace. Instead of this pandemic there are economic activities, so the lockdown has not been done, and which shows that the data that the work is doing on, economy is going on, and that is a comparatively better news in comparison to the all negative news of the COVID-19. So economy is also growing and the GST revenue is a important indicator. So how you can indicate that the net monthly GST revenue collection is good, so it tends that economy is going on its pace instead of having some COVID-19 fears due to not imposing lockdown in the major industrial areas. So this was all for today's news. We'll see you in the next video. Till then, stay at home, stay safe, wear your mask properly and get vaccinated. Jai Hind.